I welcome you all in the next video tutorial of quality assurance. So dear all, in this video we are going to cover a very important topic, that is the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, that is NABL. So let's start. As you can see, this is a certificate. ये एक certificate है. अगर कोई भी laboratory NABL द्वारा accredited हो जाए तो उसे एक certificate मिलेगा. तो this is a certificate, sample certificate. As you can see over here, it is a written certificate for accreditation. बिल्कुल laboratory का नाम आएगा. And it is written over here, it has been assessed and accredited in accordance with the standard that is made by NABL, that is ISO IEC 17025:2005. That is the general requirement for the competence of testing and calibration laboratories. और ये और संस्था का नाम आ गया. This is a discipline of chemical testing. और इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी होगी, इसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दिया जाएगा और वो फिर सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल होगा. तो चलिए देखते हैं NABL है क्या. अब NABL से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज सेट अप एज एन ऑटोनोमस बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रीडिटेशन स्ट्रक्चर फॉर कंफॉर्मिटी ऑफ असेसमेंट बॉडीज. तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्ट की गई. चलिए इसकी वेबसाइट देखते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि QCI क्या है. As you can see, this is the website of Quality Council of India. Over here it is written, it was established as a national body for accreditation on the recommendation of the expert mission of EU after consultation with Inter-Ministerial Task Force and the committees of secretaries and the group of ministers through a cabinet decision in 1996. Accordingly, this QCI was set up and this is a non-profit organization registered under the Societies Registration Act of 1860. अब QCI का काम क्या है और हम इसको NABL से किस तरह रिलेट कर रहे हैं. As you can see, these are the objectives of QCI to establish national accreditation boards. तो QCI के काम है कि पूरे भारत में नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड एस्टेब्लिश करना that is suitable for the country in accordance with the relevant international standards and guidelines. और वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए. एंड फॉर बॉडीज सर्टिफाइंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से वो डील हो सकता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से, और ओवर हियर इट इज रिटन टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज से संबंधित भी है. तो QCI, बिल्कुल QCI में NABL की बात की गई है. तो दिस इज द QCI कंपोनेंट्स. एज यू कैन सी NABCB, दैट इज द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज. बिल्कुल. NBQP, दैट इज द नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन के लिए. NABH is the National Accreditation Board for Hospital and Health Care के लिए भी एक्रेडिटेशन की बात क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया करता है कि एक एक्रेडिटेशन बॉडी होनी चाहिए, एक्रेडिटेशन बोर्ड होना चाहिए जो हॉस्पिटल से रिलेटेड और हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ एक्रेडिटेशन प्रोसीजर अडॉप्ट करे, कुछ चीजें फ्रेम करे, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि हमारी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके. उसी तरह से लैबोरेटरीज के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाना अत्यंत आवश्यक है. NABL के बारे में दे रखा है इसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे. इट इज मेंशन्ड that is it is currently functioning as an independent autonomous body. मतलब NABL अब independent autonomous body है under the Department of Science and Technology, Government of India. Now let's see the website of NABL. वहां से हमें क्लियर होगा NABL है क्या. As you can see, this is the website of NABL, that is the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. And yes, over here it is written, it is a constituent board of Quality Council of India. बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड है. किसके अंदर है हमने देख लिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर है. इफ यू गो टू द अबाउट अस सेक्शन, अगर हम अबाउट अस सेक्शन पे जाएंगे, ओवर हियर इट इज रिटन इंट्रोडक्शन. तो यहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ने. तो द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, दैट इज NABL, इट इज एन एक्रेडिटेशन बॉडी, बिल्कुल, विद इट्स एक्रेडिटेशन सिस्टम एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद ISO IEC 17011. तो ये जो स्थापित की गई है ये इस ISO IEC 17011 से संबंधित है. चलिए अब ISO की वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि ISO IEC 17011 2017 है क्या. इट इज अ कंफर्मिटी असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्रेडिटेशन बोर्डिंग एक्रीडेटिंग कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज. तो दिस इज द ISO IEC 17011 2017. Now let's read again. So it has a conformity assessment requirement for the accreditation bodies
एक्रीडिटिंग कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडीज, तो उनके बारे में बताया गया है जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक एक्रेडिटेशन संस्था की, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए ताकि वो आगे स्टैंडर्ड्स फ्रेम कर सके, उसके बारे में आईएसओ के बारे में आईएसओ में जिक्र किया गया है। एंड एनएबीएल प्रोवाइड वॉलंटरी एक्रेडिटेशन टू, एनएबीएल किसको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक्रेडिटेशन में, टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन अकॉर्डेंस विद आईएसओ आईईसी 17025 के अकॉर्डेंस जो भी लेबोरेटरीज होंगी उनको वो एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करेगा। और ये आईएसओ आईईसी 17025 ये क्या है, इट डील्स विद द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। दूसरा पॉइंट तो कि वेबसाइट पे मेंशन्ड है, एनएबीएल प्रोवाइड वॉलंटरी एक्रेडिटेशन सर्विसेज टू, सेकंड पॉइंट कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज इन अकॉर्डेंस विद, अगेन एक और आईएसओ की बात हुई, आईएसओ आईईसी 17025 that is the general requirement for the competence of testing and calibration laboratories, ये हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड वन मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी से संबंधित है इन अकॉर्डेंस विद आईएसओ 15189 that is the medical laboratories requirement for the quality and competence। थर्ड वन पीटीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर्स in accordance with ISO IEC 17043, और ये किससे डील करेगा, that is the conformity assessment general requirement for proficiency testing। और एक RMP भी है, that is the reference material producers in accordance with ISO 17034। तो सिंपल सी बात है, NABL एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, एक सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेशन बॉडी है, एक्रेडिटेशन बॉडी है जो कि किसमें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी, ISO IEC 17025 में, ISO 15189 में, ISO IEC 17043 में एक्सेट्रा। चलिए अपने सर्टिफिकेट पे दोबारा आते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, ABC टेक्नो लैब्स को, किसमें सर्टिफिकेशन प्रदान की गई है, NABL द्वारा, ISO IEC 17025 2005। अब ये चेंज होते रहते हैं, 2015, 16, 17, ये हमेशा सब्जेक्ट टू द चेंज और अमेंडमेंट्स है। तो हमें ये पता चल चुका है आईएसओ की वेबसाइट से, NABL की वेबसाइट से, कि ये एक एक्रेडिटेशन बॉडी है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट चीजों में हमें एक एक्रेडिटेशन या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है अगर उस लेबोरेटरीज ने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया, जो कि आईएसओ से भी संबंधित है और आईएसओ के बारे में भी इसमें बताया गया है, जो कि हमें यहां से क्लियर होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो व्हाट इज एक्रेडिटेशन, एनएबीएल शुरू करने से पहले अगेन एक्रेडिटेशन के बारे में जान लेते हैं। एक्रेडिटेशन क्या होता है, इट इज अ फॉर्मल रिकॉग्निशन, ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ए लेबोरेटरी that has demonstrated its capability, competence and credibility to carry out the task। बिल्कुल, अगर आप मान लीजिए किसी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने गए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेबोरेटरी कितनी सही है, क्या हमारा जो हमने जो टेस्ट करवाया है वो सही होगा कि नहीं होगा, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, क्या उस लेबोरेटरी में जो मशीन्स रखी है, इक्विपमेंट्स रखे हैं, जो लोग हैं टेस्टिंग को करने वाले, क्या वो इतने क्वालिफाइड है, क्या प्रैक्टिसेस ठीक है, क्या सैंपलिंग प्रोसीजर ठीक हो रहा है। तो NABL एक्रेडिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लैब अगर NABL एक्रेडिटेड होगी तो एक स्टेक होल्डर को, एक कस्टमर को, एक हमें पता होगा कि उस लैब में क्वालिटी को मेंटेन किया गया है। क्यों, उसने एक्रेडिटेशन ले रखा है एक संस्था का जिसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, और वो लेबोरेटरी उस नॉर्म्स और पैरामीटर पर खड़ी है, उनको फुलफिल करती है। तो लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन का मतलब क्या है, इट इज अ मीन टू प्रोवाइड कस्टमर कॉन्फिडेंस इन द टेस्ट। बिल्कुल, हमें कस्टमर कॉन्फिडेंस इन द टेस्ट, इन द रिपोर्ट्स एस्टेब्लिश करना ही इस लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन का परम उद्देश्य है। NABL for the testing and calibration laboratories, it is an autonomous body, बिल्कुल, under the Department of Science and Technology, Government of India, हमने देख लिया, and registered under the Societies Act। अब इसके हेडक्वार्टर पे जाएं, हेडक्वार्टर पे देखना जरूरी है। This is the website of NABL and let's see about a section। देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो हमें इससे आइडिया होगा। यस, हरियाणा, अगेन गुरुग्राम, हरियाणा इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। तो हमेशा आपको हेडक्वार्टर्स भी याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए आगे देखते हैं। NABL, which was initially established with the objective to provide the accreditation to the testing and calibration laboratories, later on उसको extend किया गया इस सर्विस टू द क्लिनिकल लेबोरेटरीज इन अवर कंट्री। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, NABL का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। चलिए वेबसाइट से देखते हैं इसको, किस तरह का ऑब्जेक्टिव वेबसाइट में बताया गया है।
इफ यू गो टू द वेबसाइट, NABL के बारे में मिशन बताया गया और विजन वेबसाइट में मेंशन्ड है. NABL vision is to be the world leading accreditation body and to enhance stakeholder confidence in its services. This is the main important point. आप किसी लैब में टेस्ट करवाने गए, अगर वो लैब NABL अप्रूव्ड है, एक्रेडिटेड है, तो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली उसमें बढ़ेगा, क्योंकि उस लैब में वो मानक पूरे किए होंगे जो NABL द्वारा बताए गए हैं. तो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has authorized NABL as a sole accreditation body for testing and calibration laboratories. भारतीय सरकार ने भी उसको ऑथराइज किया गया है NABL को कि वो सोल एकमात्र एक्रेडिटेशन बॉडी रहेगी टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लैबोरेटरी से संबंधित. Now, the objective of NABL is to provide third party assessment of quality and technical competence. तो ये थर्ड पार्टी से भी डील करती है. ऑब्जेक्टिव है मेन. मान लीजिए कोई लैबोरेटरी NABL का एक्रेडिटेशन लेना चाह रही है, तो होगा क्या, NABL द्वारा वहां पे इंस्पेक्शन की जाएगी, ऑडिट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उस लैबोरेटरी ने उसको फुलफिल किया है, किस तरह से वो काम कर रही है. अगर सही रहा सब कुछ, एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट किया जाएगा. अगर वो सही होगा तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही एक्रेडिटेशन दिया जाएगा. आइए फिर से देखते हैं सर्टिफिकेट पे एक टाइम लिमिट लिखा गया है 2015 टू 2017. मतलब इसकी एक वैलिडिटी होगी. वी नो क्वालिटी एश्योरेंस में हमेशा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है. तो एक्रेडिटेशन जो है एक फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है. ISO में भी हमने देखा है फिक्स पीरियड के लिए एक्रेडिटेशन दिया जाएगा. इट विल सब्जेक्ट टू द रिन्यूअल, अगर वो कंपनी, संस्था या ऑर्गेनाइजेशन उस चीज को, रिक्वायरमेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करती है, फुलफिल करती है. नेक्स्ट वन, द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. बिल्कुल है, फिर से देखिए वेबसाइट. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. सही है. एंड एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड इंडस्ट्री इन जनरल विद द स्कीम ऑफ कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडी एक्रेडिटेशन एंड विच इन्वॉल्व द थर्ड पार्टी असेसमेंट. बिल्कुल है. तो NABL इज अ फुल मेंबर signatory to the International Laboratory Accreditation Corporation, that is ILAC, as well as the APAC, that is the Asia Pacific Accreditation Corporation. तो NABL मेंबर भी है, सिग्नेटरी मेंबर भी है किसका, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का, जो कि एक्रेडिटेशन से संबंधित है, लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन से संबंधित है, जैसे ILAC और APAC. तो इनको भी देखना जरूरी है. एक बार ILAC को देखते हैं पहले. आई एम डायरेक्टली टाइपिंग ऑन द गूगल ILAC. ILAC over here, it is written, that is the International Laboratory Accreditation Corporation. Means NABL is the signatory of ILAC. आप इतना ही याद रखें. सेकेंड वन रिकॉल करिए, इज द NABL के साथ साथ एक और सिग्नेटरी थे APAC, एशिया पैसिफिक की अगर बात करें APAC, तो उसमें भी बिल्कुल सिग्नेटरी है NABL. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. अब इसके स्कोप पे आते हैं. NABL किस तरह का, क्या क्या एरियाज कवर किए, इसका स्कोप कितना बड़ा है, कौन कौन सी लेबोरेटरीज आएंगी. तो टेस्टिंग लेबोरेटरीज आएंगी जहां पे भी बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, थर्मल फोरेंसिक का काम होगा. वहां पे NABL एक्रेडिटेशन देगा उन लेबोरेटरीज को. NABL किसे एक्रेडिटेशन देगा, लेबोरेटरीज को. कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज लाइक इलेक्ट्रोटेक्निकल, मैकेनिकल, रेडियोलॉजिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, फ्लूइड फ्लो. बिल्कुल. मेडिकल लेबोरेटरीज विद दिस इज कंसर्न विद द फार्मेसी आल्सो. क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोपैथोलॉजी, सीरोलॉजी लैब एक्सेट्रा. दीज आर दी वेरियस एरियाज जहां पे NABL एक्रेडिटेशन देगा. नेक्स्ट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द NABL अप्रूवल. अगर आपको एलिजिबिलिटी जाननी है कि किस तरह से कोई भी लेबोरेटरी NABL के एक्रेडिटेशन कैसे ले, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी. To satisfy the requirement of the NABL, the institution has to satisfy the following criteria. कुछ एक क्राइटेरिया मैच करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. इसमें आपको एक चीज याद रखनी है इस वक्त, कैब का मतलब क्या है. दैट इज अ कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी. एक असेसमेंट बॉडी है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अ कैब carrying out relevant activities such as laboratory testing, calibration, food processing, research and development. तो सबसे पहले उस लैब के अंदर कुछ काम होना चाहिए, जैसे लेबोरेटरी का काम, कैलिब्रेशन का काम, फूड प्रोसेसिंग का काम, रिसर्च डेवलपमेंट का काम. एंड उसके पास, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इट मस्ट बी अ कैप. उसके पास एक असेसमेंट बॉडी अपनी होनी चाहिए जिसे बोला गया है कंफर्मिटी असेसमेंट बॉडी.
A CAB institution must either appoint a representative to start the formalities for NABL approval process, और जो उस इंस्टीट्यूशन का, उस लेबोरेटरीज का कैब होगा, मतलब जो उस इंस्टीट्यूशन की कंफॉर्मिटी एंड असेसमेंट बॉडी होगी, फिर वो क्या करेगी, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगी ताकि वो NABL का प्रोसीजर को इनिशिएट कर सके. The appointed representative must be aware of the existing quality processes followed by CAB. लेकिन उस रिप्रेजेंटेटिव को सारा का सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए जो उस लेबोरेटरी में करंट फॉलो हो रहा है क्वालिटी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड. The institution CAB must have developed a manual that indicates the quality standard. तो उस बिल्कुल मैनुअल तो होना ही चाहिए उस लेबोरेटरीज में. तो कैब क्या करेंगे, जो कैब का काम है वो उस मैनुअल को प्रिपेयर करेंगे, वो उसको प्रोक्योर करेंगे और आगे NABL को दिखाएंगे. एंड सच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट. लेकिन वो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं इन रिक्वायरमेंट, इन मानकों पे खरे उतरने चाहिए जो कि ISO द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं. जैसे ISO में IEC 17025 2005, 15189 2012 या फिर IEC 17043 2010. तो कुछ मानक बताए गए हैं. The CAB must have an appointed manager who has relevant training up to 4 days on the internal audit. तो CAB द्वारा एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा जिसे वो मैनेजर बोल रहे हैं, जिसको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो प्रोसीजर है उसको फॉलो अप कर सके NABL का. And the quality document which is prepared by the CAB must be implemented immediately. तो जो क्वालिटी डॉक्यूमेंट जो भी CAB बनाएगा उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, आवश्यक है उस संस्था द्वारा, जो भी लेबोरेटरी है. और वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें फुलफिल हो जानी चाहिए, जो मानक दिए गए हैं ये ISO द्वारा वो फुलफिल हो जाने चाहिए. Any applicant must participate in the proficiency training program which is conducted by NABL. तो NABL कुछ प्रोग्राम करवाते हैं जिसको PTP बोलते हैं, प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम. And if there is no form of training available, the institution can carry out an inter-lab comparison when it comes to the quality assessment. बिल्कुल NABL का एक काम भी है. अब NABL ने मान लीजिए किसी लैब को एक्रेडिटेशन दे दिया, तो वो क्या करते हैं, उस लैब का सैंपल लेके NABL एक्रेडिटेड लैब जो कि ऑलरेडी टेस्टेड लैब है, एक्रेडिटेड लैब है, उसमें सेम सैंपल को भेजते हैं, फिर रिजल्ट्स को मैच भी करते हैं कि क्या उसमें वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, क्योंकि काम सेम है. सपोज करिए काम सेम है, एक जगह केमिकल, एक जगह ब्लड की टेस्टिंग हुई, आप एक लैब में गए, वहां पे आपने ब्लड सैंपल टेस्ट करवा दिया और आपकी शुगर लेवल आपको पता चल गई. अब NABL क्या करेगी, NABL भी उस लेबोरेटरीज की जांच के लिए जो NABL द्वारा ऑलरेडी एक्रेडिटेड लैब्स हैं, सेम सैंपल को उन लैब्स में भेजेगी और रिजल्ट्स को कंपेयर करेगी. तो NABL इस तरह से भी काम करता है. तो प्रोसीजर क्या रहेगा अप्रूवल का? लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. नंबर 1, मेक एन एप्लीकेशन. सबसे पहले एप्लीकेशन होगी, पेमेंट ऑफ द फीस, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, प्री असेसमेंट विजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट, असेसमेंट टीम आएगी, फॉलो अप एक्शन होगा, रिकमेंडेशन, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट होगा, देन आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड देन कंप्लायंस होगी. ये सारे मानक पूरे हो जाने चाहिए और उसका एक वैलिडेट पीरियड के लिए ही NABL एक्रेडिटेशन दिया जाएगा. एंड दीस आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द एक्रेडिटेशन. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो भी इंस्टीट्यूशन है वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा NABL को, और जो भी एप्लीकेशन है वो इन अकॉर्डेंस के होने चाहिए, मानक पूरे होने चाहिए, ये जो सारे बताए गए हैं एज पर ISO IEC. सेकंड, पेमेंट ऑफ द फीस. बिल्कुल, द एप्लीकेंट हैज टू पे द रिस्पेक्टिव फी व्हिच इज प्रेजेंट अंडर NBL, एंड इफ द एप्लीकेंट डज नॉट वांट टू मेक एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर देन द सेम रीजन मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑन द अथॉरिटी. तो NABL में बताया गया है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी है. ये काम आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं. अगर आप NABL की वेबसाइट पे जाएंगे तो इट इज ऑलरेडी मेंशन द प्रोसीजर, ऑनलाइन प्रोसीजर फॉर द अप्लाई. तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो नेचुरल सी बात है कोई किसी तरह की आपको फीस भी पे करने पड़ेगी. एज यू कैन सी द वेबसाइट, अप्लाई फॉर NABL प्रोडक्ट बेस्ड एक्रेडिटेशन प्रोग्राम, अप्लाई फॉर NABL मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग प्रोग्राम. दिस इज इंपॉर्टेंट. NABL एक्रेडिटेशन फॉर मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, RT-PCR, RNA वायरस, कोविड-19, तो द डिफरेंट सेटअप्स. तो किस तरह आपने हर एक चीज के लिए अलग अलग कंपोनेंट दे रखे हैं. अगर आपको NABL एक्रेडिटेशन फॉर टेस्टिंग लैब चाहिए तो यू कैन अप्लाई ओवर हियर एंड सेपरेट विंडो विल ओपन एंड इन दिस पेज यू कैन इजिली अप्लाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज वी आर द न्यू यूजर. देन द टाइप ऑफ कैब, तो यहां पे भी कैब मेंशन है, तो यहां पे सबसे पहले आपको टाइप ऑफ कैब लिखना पड़ेगा, किससे संबंधित है, कैलिब्रेशन मेडिकल PTP से कि RMP से. तो ये आपको वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रखने. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन. व्हेन द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द NABL सेक्रेटरीट,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी इशू। जब आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा ताकि फर्दर कोरस्पोंडेंस उसी नंबर से होगी। नेक्स्ट, प्री असेसमेंट विजिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ देयर आर नो डिस्क्रिपेंसीज इन द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं पाई गई, कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई, then the lead assessor will be appointed to carry out pre-assessment visit to the CAB। तो सबसे पहले एक लीड असेसर बनाया जाएगा और वो अपॉइंट किया जाएगा ताकि एक प्री असेसमेंट विजिट हो सके कैब में। अब ये कैब क्या है, बार बार कैब शब्द आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से रिकॉल कर रही है। कैब का गठन सबसे पहले हुआ था, कंफॉर्मिटी एंड असेसमेंट बॉडी बनाई जाएगी उस संस्था द्वारा जिसको अप्रूवल चाहिए। तो कैब इज मैंडेटरी, और हमने वेबसाइट पे भी देख लिया वो अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड भी किया गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो सबसे पहले देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन द एप्लीकेशन, देन द लीड असेसर will be appointed to carry out pre-assessment visit to the CAB, and the assessment is carried out to understand if there are no discrepancy in the quality control adopted by the CAB. Along with this, assessor will find out if there is any other assessment required to be carried out by the NABL. तो सबसे पहले pre-assessment visit होगा, then submission of the report। अब ये visit कर दिया, किसने किया है? ये lead assessor द्वारा visit किया गया। then वो report बनाएगा और वो सबमिट की जाएगी। The submission of the report after the evaluation of is carried out by the lead assessor. A report is submitted to the secretariat of the NABL. NABL को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, किसके द्वारा? लीड असेसर द्वारा NABL को रिपोर्ट दी जाएगी। Over here it is mentioned. Then next step, assessment team. When the CAB has taken all the measure to correct the issues, मान लीजिए रिपोर्ट दी और कुछ बोला गया कि आप ठीक करिए और वो ठीक हो गए। When the CAB has taken all the measure to correct the issues, the NABL will form a team constituted by again lead assessor, technical experts आएंगे and other individual who are experienced in the relevant field and discipline। अब inspection होने वाली है, audit होने वाला है। The team analyzes and find out if compliance is met out in accordance with the required standard। तो टीम का काम क्या है? स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या चीज हो रही है या नहीं हो रही, उसको जांचना, उसको परखना। तो टीम क्या करेगी? सारे ISO के हिसाब से जो भी लेट डाउन किए गए हैं प्रोसीजर को चेक करेगी। एंड इफ देयर आर एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द कैब, देन द रिपोर्ट विल बी मेड एंड सबमिटेड टू द सेक्रेटरीट, एंड इन द रिपोर्ट रेमेडीज वुड बी इंक्लूडेड टू एड्रेस द डिस्क्रिपेंसीज। और ये लिखा भी जाएगा कि किस तरह से इसको ठीक भी किया जा सकता है। फॉलो अप एक्शन, और उसके बाद फॉलो अप एक्शन लिया जाएगा। व्हेन द NABL सेक्रेटरीज रिव्यू द रिपोर्ट, द कैब मस्ट टेक फॉलो अप एक्शन। तो कैब को फॉलो अप एक्शन लेना जरूरी है। अगर उस लैब को एक्रेडिटेशन चाहिए तो उसको ठीक करने पड़ेगा अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, एंड दिस एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन 60 डेज। उसका एक टाइम पीरियड दिया गया है, 60 दिन के अंदर वो कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। एंड इन एक्शन द कैब मस्ट मेंशन द करेक्टिव एक्शन इट हैज टू टेक टू मिटिगेट या रिमूव डिफिकल्टीज। रिकमेंडेशन की अगर बात करें, आफ्टर द फॉलो अप एक्शन के बाद टेकन बाय द कैब, द एक्रेडिटेशन कमिटी विल मेक रिकमेंडेशन टू द NABL चेयरमैन को रिकमेंड करेगी। अगर वो रिकमेंडेशन सही हुई तो सर्टिफिकेट ग्रांट हो सकता है। एंड व्हेन द एक्रेडिटेशन इज अलाउड, द NABL विल सेंड द फॉलोइंग द एप्लीकेंट: यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ द NABL अप्रूवल, एक होलोग्राम ऑफ द NABL साइन एंड डेट ऑफ वैलिडिटी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाएगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ द एप्लीकेंट हैज एनी आउटस्टैंडिंग, कोई भी पेमेंट अगर ड्यू होगी तो NABL को पेमेंट की जाएगी। और कंप्लायंस, द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर, उसको इंश्योर करना है कि कंप्लायंस जो भी त्रुटियां पाई गई हैं उसको इंश्योर करे और वो सारी की सारी इनसे संबंधित हो। ये जो भी स्टैंडर्ड्स में बताया गया है वो फुलफिल होना जरूरी है, जिसमें IEC 17025 2005, 15189 2012, 17043 2010, 17034 2016, ये सारे बताए गए। और बिल्कुल एक वैलिडिटी पीरियड होगा। व्हेन एन एप्लीकेंट हैड बीन रिसीव्ड द सर्टिफिकेट, इट इज वैलिड फॉर 2 years, एंड एनुअल सर्वेलेंस इज कैरिड आउट बाय द NABL। और उसके बाद एनुअल सर्वेलेंस भी, हर साल एनुअल सर्वेलेंस भी की जाएगी NABL द्वारा। एंड द कैब हैज टू अप्लाई फॉर द रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी से उसको पहले अप्लाई करना है। दिस मस्ट बी एक्सटेंडेड आउट 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लाइसेंस। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अलग अलग क्राइटेरियाज में रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे मेडिकल लेबोरेटरीज के लिए अलग है, डिवाइसेस के लिए रहेगा, टेस्टिंग लेबोरेटरीज के लिए, कैलिब्रेशन के लिए, PTP RMP के लिए, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं एक्रेडिटेशन लेने के? अगर किसी संस्था ने एक्रेडिटेशन ले लिया, किसी लेबोरेटरी ने एक्रेडिटेशन ले लिया NABL का, होगा क्या उससे? इंटरनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी उसको।
अंतरराष्ट्रीय रिकॉग्नाइज हो जाएगी लेबोरेटरी, असेस टू द ग्लोबल मार्केट, टाइम एंड मनी एफिशिएंट, enhanced customer confidence and satisfaction. This is most important. क्वालिटी एश्योरेंस में बार बार हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं. Robust quality management system, continual improvement, better operational control, assurance of the accurate and reliable result, cost reduction and prevent loss due to defect. बिल्कुल वो accredited lab है तो वहां पे कस्टमर जरूर जाके एक सेटिस्फेक्शन से उनको होगी जब भी वो कुछ टेस्ट करवा के आएंगे वहां से. क्यों? उस लैब ने मानक पूरे कर रखे हैं जो कि NBL द्वारा बताए गए. And the benefits of laboratory accreditation: increased confidence in the testing and calibration report issued by the testing and the collaboration medical testing laboratories with emphasis on the accuracy and reliable results होंगे. बिल्कुल सही बात है, reliable results होंगे उस laboratories के. Next, the results from the accredited laboratory extensively used by the regulators for the public benefit in the provision of services that promote an unpolluted environment. तो इन चीजों का ध्यान भी रखा गया है NABL द्वारा, और ये व्याख्यान की गई है ISO जो ऊपर हमने बात की कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वो सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं कि आप लेबोरेटरी तो बनाइए लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपने लैब बना दी और जो भी वेस्ट निकल रहा है आपने एनवायरनमेंट में उसको फेंक दिया. उसको डिकम्पोज करने का प्रावधान भी दे रखा है और वो भी चेक किया जाएगा NABL द्वारा जब एक्रेडिटेशन का प्रोसीजर रन करेगा. सो आई होप दिस विल गिव ब्रीफ आइडिया. आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा. NABL से संबंधित हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में देख लिया है कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज किस तरह से काम करता है. यस, इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. So in the last, I acknowledge all the sources that I have used to prepare the video, especially the website of NABL, QCI, and all the other online platform. So thank you all for your valuable time. In the last, we will see again from the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. आइए देखते हैं accreditation का प्रोसीजर वेबसाइट में कैसा है. तो सबसे पहले yes, we are right, accreditation CAB is formed. तो एप्लीकेशन ऑफ द एक्रेडिटेशन बाय द कैब बनाया जाएगा उस लेबोरेटरी द्वारा. देन एक्नॉलेजमेंट, जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा एक्नॉलेज किया जाएगा उसको और एक यूनिक नंबर दिया जाएगा. स्क्रूटनी होगी, डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा, लीड असेसर की हमने बात की गई थी. देन प्री असेसमेंट होगी, फाइनल असेसमेंट की जाएगी, ऑडिट का प्रोसीजर अडॉप्ट होगा. अगर सब कुछ सही पाया गया तो रिकमेंडेशन की जाएंगी और सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और अगर करेक्टिव एक्शन की जरूरत है तो वो भी कैब को डायरेक्ट किया जाएगा कि आप करेक्टिव एक्शन लीजिए और इन चीजों को करेक्ट करिए. आई होप दिस इज क्लियर. एक बार फिर से देख लीजिए. पीटीपी का मतलब क्या है? प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर. आरएमपी का मतलब क्या है? रेफरेंस मटेरियल प्रोड्यूसर्स. तो अब इफ यू क्लिक इन द वेबसाइट, अगर NABL एक्रेडिटेशन की बात करें तो आपको जैसे मान लीजिए किसी भी लेबोरेटरी को एक्रेडिटेशन चाहिए NABL का ISO IEC 17025 से संबंधित, तो ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा. ये किससे डील कर रहा है? केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फ्लूइड फ्लो, फोरेंसिक, रेडियोलॉजी. तो दीज आर दी प्रोसीजर. सेकंड वन, कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज एज पर ISO IEC 17025. तो ये किससे डील कर रहा है? एक्रेडिटेशन सर्विसेज टू द कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज in the following discipline like mechanical, electrotechnical, fluid flow, thermal, optical, medical devices and radiological. Again, I am going again to the website. फिर से गया मैं वेबसाइट पर. medical laboratories as per ISO 15189 पे आप just click on this and this will appear. तो medical laboratory से संबंधित किस डिसिप्लिन में दिया जाएगा? ISO सर्टिफिकेशन क्लिनिकल में, क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, बायोकेमिस्ट्री में, पैथोलॉजी के में, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल एंड इंफेक्शियस डिजीज सीरोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, फ्लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग. Again, I am clicking on proficiency testing provider as per ISO IEC 17043. तो देखते हैं 17043 में बिल्कुल कंफर्मेटरी असेसमेंट जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग बताई गई है. दैट इज द प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर. किस फील्ड में है? टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या मेडिकल या इंस्पेक्शन से संबंधित ISO IEC 1704. तो याद रखिए किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. नेक्स्ट वन, ISO 17034, that is related to the general requirement for the competence of the reference material producer. तो ये किससे रिलेटेड है? The accreditation services to the RMP is generally giving in the following categories like chemical composition, biological and clinical properties, physical properties, engineering and the miscellaneous properties. So I hope this is clear and I request you to go to the website of NABL
एंड क्लियर दिस कंसेप्ट बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ILAPC क्या है, एवरीथिंग इज गिवन, इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन एंड APAC ये भी हमने क्लियर कर लिया. ऐसा एशिया पैसिफिक एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन इज देयर एंड हेडक्वार्टर इज इन हरियाणा and all the procedure mentioned. So I request you to go to the website and clear this concept. Again, thank you all for a valuable time.